Hello students, welcome back. Moving towards chapter number 3 from a syllabus, we have completed with chapter number 1, 2, then I taught you chapter number 5, that is significant aspects of political processes. Now we are just left out with chapter number 3 and 4. So we are going to cover major part of this topic today. Concept of disparity, children, about the caste system, the social stratification, all that we have studied in the prior lectures. Today, children, we will focus on the concept of disparity, part 2. First of all, children, what is this topic all about? So, children, again, we will be talking something related to the caste system in India. This will be the first thing to study. Then, children, we have got various conflicts that arise in a country. Okay, तो कास्ट के बेस पे चलो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं लोगों के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. देन वी हैव गॉट रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स दैट टेक प्लेस, एंड लास्टली देयर आर सम लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स टेकिंग प्लेस. राइट, तो मतलब इंडिया में झगड़ा करने का चलो 4 अलग अलग रीजंस आता है. एक तो कास्ट को लेके झगड़ा करते हैं हम लोग, फिर अलग अलग कम्युनिटीज आपस में झगड़ते हैं, फिर अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग आपस में झगड़ते हैं, और फिर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भी आपस में झगड़ते हैं. राइट, सो दिस इज the overview of the topic that we are going to study, children. Here now, the starting ka part, children, we have studied how during the pre-independence period India was actually being dominated by the caste system, jahan pe higher caste children, they were enjoying all the benefits in the society, but there were some people who were socially boycotted, jaise ki those people who are actually referred to as the untouchables. Right? Achha. But we all know, children, that Article 17 of the Indian Constitution says that caste system is totally forbidden in India. So there are some people who become disabled due to that untouchability, and anyone, children, who practices that untouchability is actually should be facing an offense, and it's a punishable offense, children, according to the law. Okay, so I think lower caste के खिलाफ कुछ भी offenses create होते हैं, तो उसके लिए बच्चों लोग पार्लियामेंट has enacted that untouchability act of 1955. इमेजिन करना बच्चों लोग 1955 में एक्ट पास हुआ था, उसको बाद में रीनेम किया गया था इन द ईयर 1976 एंड इट वाज टर्म्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट करके बोला था उसको. लेकिन आप सबको पता है, बिसाइड्स लाइक डिस्पाइट ऑफ पासिंग दिस एक्ट, स्टिल वी आर अनेबल टू कंट्रोल एंड सेफगार्ड the lower caste of the society, and there are several atrocities, children, that are being committed by the people who are belonging to the upper castes. Right, and we know there were these great people from our history like Dr. Babasaheb Ambedkar, then Jyotiba Phule, Mahatma Gandhi, Veer Savarkar. Now these people have strived immensely, children, for the upliftment of those so-called untouchables, and they have just tried to decrease the hostilities towards the backward castes. Okay, so what exactly is this caste system, children? तो चलो वापस से हम लोगों को वही पढ़ने का है. caste system क्या होता है, children? It's a social structure जहाँ पे people are divided on the basis of their social status. अभी इंडिया का जो caste system है, चलो उसका roots हिंदू स्क्रिप्चर्स में जाता है. अभी जो हिंदू के होली बुक्स आते थे बच्चों लोग, मनुस्मृति आता था, या फिर जो वेद आते थे, ऋग्वेद था बच्चों लोग, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद. अच्छा, और वहां पे देयर वाज अ सिस्टम, चिल्ड्रन, व्हिच वाज कॉल्ड एज द वर्ण सिस्टम. वर्ण बोलते थे बच्चों लोग उसको, वर्ण. वर्ण का मतलब क्या होता था? लोगों के ऑक्यूपेशन के हिसाब से लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता था. कुछ वर्ण ऐसे थे जिनको स्पेशल राइट्स मिलते थे, कुछ प्रिविलेजेस मिलते थे. There were some lower caste people, children, they were deprived of all the rights and the privileges, and slowly, children, this varna system, they deteriorated into the caste system. Okay, so the caste system, children, we will just throw some light upon the caste system in India. In India, children, we generally hear that word that is called as Dalits करके बोलते हैं. They are known as but this scheduled caste. There are some Adivasi people who are actually called as the scheduled tribes. Now they face a lot of social exclusion. That means they are not included in the society. मतलब बच्चों लोग, they have lack of access, या फिर unequal access
पॉलिटिक्स की बात रहेगी बच्चों लोग वहां पे, या फिर पब्लिक सर्विसेज होते हैं, टॉक अबाउट एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक प्लेसेस लाइक स्कूल्स, टेम्पल्स में इन लोगों को एक्सेस नहीं दिया जाता है। और जो इनकम अर्निंग असेट्स होते हैं ना बच्चों, जैसे कि जमीन वगैरह, वो भी उनके ओनरशिप में नहीं होती है। हाँ, अभी जितने भी स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स है, दे हैव बीन ट्राइंग हार्ड टू ऑब्टेन सम ह्यूमन राइट्स फॉर देम एंड सम लॉफुल एंटाइटलमेंट्स, बट वी नो देयर आर दिस अपर कास्ट so-called people who always resist and they do not want to interest or empower these lower caste people, right? Acha, now okay, the second point children that we have here, economic inequalities करके लिखा हुआ है। okay, economic inequalities का मतलब आप सबको पता है that people who are socially backward will always remain economically backward, क्योंकि जितने भी इनकम अर्निंग असेट्स होते हैं बच्चों, दे आर कंट्रोल्ड बाय द सो कॉल्ड हायर कास्ट पीपल, और ज्यादातर जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉय किया जाता है, वेयर द वेजेस मतलब उनको जो सैलरीज दिए जाते हैं ना बच्चों लोग, दे आर रीजनेबली और ऑलमोस्ट लाइक चिल्ड्रन दे आर नथिंग। और जो नेशनल सैंपल सर्वे हुआ बच्चों 2010 में, तो उनके हिसाब से जितने गरीब लोग हैं ना बच्चों लोग, गरीब लोग, उसमें से दलित्स का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 32% ऑफ द पुअर पीपल आर दलित्स, एंड जो पुअर पीपल होते हैं बच्चों उसमें से 50% दे बिलोंग टू द आदिवासी पीपल। इसका मतलब ये हो गया कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, दे एक्चुअली फेस द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एज वेल। अच्छा, फिर लोअर स्टेटस ऑफ वुमेन। अपने इंडिया में अगर आप थोड़ा सा भी अपने रिलीजन पे फोकस करोगे चिल्ड्रन, तो कास्ट दे ट्राई टू पुट लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि लाइक इंडियन सोसाइटी हैज बीन ऑलवेज डोमिनेटेड बाय सो कॉल्ड मेल्स and they behave like maharajas, na? And when it comes to women children, they are always given that subsidiary position, they are given the secondary position, तो उनके ऊपर सब restrictions डाले जाते हैं। अच्छा, whether children it comes to education, people are not interested in educating the girl child. Why? Because she is considered like a liability. उसको पढ़ाने का, फिर बाद में वो मतलब ससुराल जाएगी, उनको पगार लेके देगी, वैसा भी सोचने वाले लोग मिलते हैं आपको वहां पे। रिलीजियस रिचुअल्स में भी बच्चों लोग बहुत सारे केसेस में वुमेन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। पॉलिटिक्स में, अगर कोई पॉलिटिक्स में भी अगर कोई लेडीज रहती है तो उनके हस्बैंड वगैरह कंट्रोल करते हैं बच्चों लोग सब पॉलिटिक्स, गवर्नेंस। अच्छा, एंड कुछ कास्ट ऐसे भी होते हैं बच्चों लोग, दे वांट टू गेट दैट गर्ल मैरिड ऑफ बिफोर शी रीचेस द एज ऑफ प्यूबर्टी, मतलब 12-13 साल के एज में भी, उससे पहले उसका शादी करवा दो। और वी हैव बीन confining women to house and she is not able to have contacts with the outside world. So I think like this is the situation of the woman. और widows का तो आपको पता है बच्चों लोग, जो जिनके हस्बैंड का डेथ होता है उनके ऊपर तो बहुत सारे सोशल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। उनको बच्चों ना ही पॉलिटिकल लाइफ में, रिलीजियस में, सोशल फंक्शंस में कहीं पे भी मतलब दे आर कंसिडर्ड एज लाइक ओमन, मतलब अशुभ माना जाता है उनको, बिकॉज दे ब्रिंग बैड लक and that is why people exclude them all the social functions. Acha, now caste system mein bachcho log, there is a lower preference for employment by the private sector. What it means ki educated dalits, they face difficulties in getting opportunities in the lucrative private sector job market. मतलब क्या होता है बच्चों लोग कि इंडिया में जब भी आप इंटरव्यू लेने के लिए जाओगे ना, तो आपका बैकग्राउंड पूछा जाता है। जब उनको पता है, जैसे कि अगर कोई ब्राह्मण वगैरह इंटरव्यू लेने के लिए बैठा हुआ है और कोई दलित वहां पे इंटरव्यू देने के लिए गया, अभी उसका बैकग्राउंड पता चलते वक्त आई थिंक वो उसको जॉब पे रखने वाला ही नहीं है। मतलब प्राइवेट सेक्टर में उनको एक्सक्लूड किया जाता है ड्यू टू दैट डिस्क्रिमिनेशन। और मतलब जो दलित्स को, इसलिए गवर्नमेंट में शायद उनको प्रेफरेंस मिलता रहेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि वहां पे रिजर्वेशन होता है बच्चों लोग उनको, राइट? This exclusion from the private sector, it prevents the Dalits from contributing and enjoying the fruits of economic development that is made by the country. तो उनको फायदा नहीं हो रहा है मतलब बच्चों लोग डेवलपमेंट का। That's the problem that we face. फिर point number 5 children, talking about lower status and unjust treatment. लोअर कास्ट के लोगों को चिल्ड्रन, दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम एंजॉयिंग द ह्यूमन राइट्स, कुछ प्रिविलेजेस नहीं दिए जाते उन लोगों को, दे आर कंसिडर्ड लाइक स्लेव्स एंड अनजस्टली ट्रीटेड। मतलब उनको तो बच्चों अनटचेबल्स कंसिडर किया जाता है, उनको छूने का नहीं, उनको गांव में आने के लिए अलाउड नहीं होता है। कभी गांव में आते तो पता है बच्चों, दे कैन नॉट एंटर योर हाउस। गलती से अगर किसी को छू लिया तो प्रॉब्लम, और गलती से किसी ब्राह्मण को छुआ तो प्रॉब्लम।
फिर उन लोगों को 7 बार नहा के खुद का शुद्धिकरण करना पड़ता है बच्चों लोग, क्योंकि पोल्यूशन होता है, रिलीजियस पोल्यूशन, राइट। अच्छा, किसी मंदिर में एंट्री किए तो प्रॉब्लम। अच्छा, हम लोग जब स्कूल्स में पढ़ते हम लोग देखते थे कि लाइक वो जो हरिजन्स के बच्चे होते हैं उनको अलग से बिठाया जाता था। और होता क्या है चिल्ड्रन कि द अपर कास्ट दे जस्ट वांट टू कीप ऑन एक्सप्लॉइटिंग दिस सो कॉल्ड लो कास्ट। अभी देखो, जैसे कि एक धोबी होता है ना बच्चों लोग, he has got a very low status. Why? Because he is watching dirty clothes of other people. तो उसको हम लोग क्या मतलब एक लो कास्ट में मानते हैं। अभी जो स्वीपर्स होते हैं ना बच्चों, स्वीपर्स दे हैव गॉट अ लो स्टेटस। व्हाई? बिकॉज दे कीप ऑन स्वीपिंग दोस अनक्लीन थिंग्स। अभी अपने घर पे जो कचरे वाले आते हैं, हम लोग उनको क्या आवाज देते हैं बच्चों लोग? कचरे वाला आया है। अभी आप बताओ, कचरा कौन करता है? वो करता है कि हम लोग करते हैं? कचरा हम लोग करते हैं, वो बेचारा साफ करने के लिए आता है, हम लोग उसको कचरे वाला बुलाते हैं। एक्चुअली उसको हम लोगों को आवाज देना चाहिए ना, कचरे वाले लोग कचरा देना करके, बिकॉज इट्स वी हु लाइक मेड एवरीथिंग अनक्लीन। अभी जो मोची होता है बच्चों, क्योंकि वो लोग लेदर और डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स के साथ डील करते हैं, उसकी वजह से उसको सोसाइटी में लो स्टेटस दिया जाता है एंड दे आर ट्रीटेड अनजस्टली। दैट्स अ प्रॉब्लम। सो अगली बार जब भी आप कचरे वाले को आवाज दोगे, थोड़ा इज्जत से बात करने का, क्योंकि वो जो काम कर रहा है बच्चों, बहुत बड़ा काम होता है, क्लीनिंग योर डर्ट। अच्छा, देन लो लिटरेसी अमंग लोअर कास्ट्स। अच्छा, so many years children, the low caste people, they have been deprived of their right to education. अच्छा, और फिर क्या होता है, ब्राह्मण लोगों का ना बच्चों लोग, अपर कास्ट के लोगों को लगता है कि अगर ये दलित लोगों को हमने एजुकेशन देने के लिए दिया तो फिर वो लोग डेवलपमेंट कर लेंगे, और फिर बाद में क्या होगा। देखो बच्चों, ध्यान रखने का, अपर कास्ट का इंपॉर्टेंस तभी रहेगा जब लोअर कास्ट होता है। अगर लोअर कास्ट नहीं होगा बच्चों तो फिर अपर क्लास को डोमिनेट करने को कैसे मिलेगा ना। आप मुझे बताओ, सब लोग 90% वाले लोग रहेंगे तो फिर उनका इंपॉर्टेंस चला जाएगा। जब कोई फेल होने वाले होते हैं, 30-40% वाले बच्चे होते हैं, और उनके अंदर बच्चों लोग कोई 90% वाला तो फिर उनका इंपॉर्टेंस बढ़ता है, राइट। इमेजिन करना चिल्ड्रन कि सब लोग स्कॉलर्स होते थे, फिर उनका इंपॉर्टेंस चला जाता था ना। सब लोग गोरे दिखते थे तो फिर गोरे दिखने का इंपॉर्टेंस नहीं होता था। कुछ लोग काले और फिर उनके अंदर बच्चों लोग कुछ गोरे होते हैं ना, तो इट इंक्रीजेस देयर इंपॉर्टेंस। हमेशा बच्चों लोग उजाला रहता तो फिर आपको उजाले का इंपॉर्टेंस नहीं। हाँ, रात होने के बाद में सुबह जब उजाला होता है तो उसका इंपॉर्टेंस पता चलता है हम लोग को। इट्स द सेम थिंग चिल्ड्रन। तो अपर कास्ट दे नेवर वांट द लोअर कास्ट टू डेवलप देमसेल्व्स। ओके, अच्छा, इफ यू सी इन द सेवरल पार्ट्स ऑफ कंट्री चिल्ड्रन, इफ यू टॉक अबाउट बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, उनको हम लोग नाम, यू विल रिमेंबर चिल्ड्रन, आई टोल्ड यू वन नेम फॉर देम, बीमारू करके, क्योंकि ये लोग हमेशा बीमार होते हैं। बीमारू, बी मतलब क्या होता है बच्चों लोग? बिहार। माँ का मतलब क्या होता है? मध्य प्रदेश। आर मतलब राजस्थान। यू मतलब उत्तर प्रदेश। बीमारू नाम मैं नहीं बोल रहा हूँ बच्चों लोग, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, डोंट फील बैड। अच्छा, द पेरेंट्स ऑफ लोअर कास्ट चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू ब्रिंग देयर चिल्ड्रन टू वर्क अलोंग विद देम इन द फील्ड्स ऑफ रिच लैंड। मतलब अगर कोई मजदूरी करने के लिए जाता है ना लोअर कास्ट के लोग, तो उनको उनके बच्चों को भी साथ में लेके जाना पड़ता है, और एज अ रिजल्ट चिल्ड्रन फिर इनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता है उन लोगों को फिर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन कास्ट एज अ बैरियर टू सोशल प्रोग्रेस। सोशल प्रोग्रेस में, मॉडर्नाइजेशन में बच्चों लोग कास्ट सिस्टम है ना एक बर्डन बन जाता है। हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम लोग ये सब कास्ट, और गांव के लोगों को तो पता है बच्चों लोग, गांव का मतलब घर पे बैठे बैठे कुछ टाइम पास नहीं होता, तो इनको ये सब कास्ट वाली चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि लाइक उनके जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस थे वो लोग उसको फॉलो करते रहते हैं। जैसे कि अगर कोई मोची है तो उसका बच्चा भी क्या काम करता है? मोची का ही काम करेगा। एक धोबी है तो उसका बच्चा भी क्या काम करता है? धोबी का ही काम करेगा। हाँ, a craftsman will use old age tools and methods and not modern techniques and machinery, and that is why the lower caste people perform lower level occupations. तो फिर economic inequalities children they will always keep on increasing. Now the question arises कि like चलो, this is a malaise. It's a serious problem that is being faced by Indian society. Question arises कि like sir, how are we supposed to combat these things? अच्छा, अभी इंडिपेंडेंस के बाद में बच्चों लोग, मतलब हमने जो इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है, सोशल एक्सक्लूजन का प्रॉब्लम है चिल्ड्रन, वी हैव ट्राइड अ लॉट एंड वी हैव बीन वेरी प्रोएक्टिव in putting some measures in place which will be actually granting some respectable place to these Dalit people. और सबसे बड़ा अगर इनके लिए बच्चों लोग कोई होता है सेफगार्ड तो होता है कॉन्स्टिट्यूशन और जो पब्लिक पॉलिसीज बनाए जाते हो।
सो कॉन्स्टिट्यूशन में चलो बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए, देयर आर सो मेनी लॉज एंड पॉलिसीज, हाँ, बट आई थिंक लाइक उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो काफी नहीं है, उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. नाउ इंडिया फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन प्रोवाइड्स a range of entrenched institutional, social and political constraints to implement the constitutional commitment to equal. अभी ऐसे भी तो हो सकता है बच्चों कि दलित लोग जो है ना, they are not adequately represented into the legislature. तो उनके लिए अगर कोई कानून बनाने का रहेगा तो फिर वहां पे जो दूसरे कास्ट के लोग बैठे रहते हैं वो लोग वापस से अपोज ही करने वाले चिल्ड्रन. ओके, बट एज आई सेड कि लाइक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कौन बहुत बड़ा, who was a lion, who had a lion share in drafting the constitution, B.R. Ambedkar, and he was a Dalit, right? Now constitution clearly has set the agenda for that post colonial state in terms of abolition or at least reduction of social inequality. मतलब ब्रिटिशर जब इंडिया को छोड़ के गए थे तो उसको हम लोग पोस्ट कॉलोनियल स्टेट करके बोलते, तो इनइक्वालिटी को अबॉलिश करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चों यहाँ पे. We have to give some rights to the different communities that we have, या फिर जो कल्चरल आइडेंटिटीज होते हैं. और अपने देश में चलो रिलीजियस फ्रीडम मिलना चाहिए, इंडिविजुअल लोगों को राइट्स मिलने चाहिए, देयर शुड बी सम सिविल लिबर्टी, फंडामेंटल राइट्स तो है ही. और जो अपना प्रीएम्बल आता है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, विच इज एक्चुअली नथिंग बट द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, तो वी बिस्टो व्हाट आर कॉल्ड एज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर एंड इक्वालिटी of status and opportunity to all the people irrespective of their caste, creed and religion. और फिर fundamental rights है चलो अपने fundamental duties होते हैं. Then in the constitution they also meant they have mentioned the directive principles of the state policy, and these are the vital elements of the constitution children, जिन्होंने अधिकार और अपने जो कर्तव्य रहते हैं चलो citizens of the state, they have been guaranteed through this constitution to all the people. तो उनको बच्चों लोग अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो दे कुड हैव सम लीगल प्रोसेसेस. लोगों को एजुकेट करने की जरूरत होती है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनको प्रेफरेंस देना चाहिए, एंड दे हैव गॉट लिबर्टी ऑफ स्पीच, अच्छा, अलॉन्ग विद दैट एसोसिएशन एंड रिलीजियस अफिलिएशन. ओके, 1972 में बच्चों लोग जब फंडामेंटल ड्यूटीज को अमेंड किया गया था, हाँ, तो सिटीजन्स को कुछ ड्यूटीज उनके खुद की तरफ भी होते टुवर्ड्स देमसेल्व्स, द एनवायरनमेंट, द स्टेट एंड द नेशन. बच्चों लोग कैसे बिहेव करे वो कहां पे लिखा जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज में. तो बच्चों गवर्नमेंट को भी कुछ काम करने के लिए प्रिंसिपल्स होने चाहिए ना, उसको क्या बोला था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. हाँ, दे ट्राई टू अचीव सम सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर दिस पीपल. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, दे हैव रिकॉग्नाइज्ड चिल्ड्रन इक्वालिटी. मतलब क्या होता है बच्चों लोग कि लाइक इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, वेदर दे आर इक्वल और अनइक्वल. But that is not enough, children, for equality that is provided by creating a more just society. तो scheduled caste, scheduled tribes, backward caste होते हैं बच्चों लोग, religious and cultural minorities होते हैं. हाँ, तो I think like we need to have some affirmative action for the protection of these groups which are actually integral part of our culture and our society as well. Okay, अभी recently बच्चों लोग Supreme Court as they have taken a very broad view, and what is that children, for fundamental rights such as the right to life and liberty. और इसकी वजह से बच्चों कुछ स्पेस क्रिएट हुआ है फॉर नंबर ऑफ सोशल जस्टिस इश्यूज व्हिच ब्रॉट बिफोर द कोर्ट. ओके, जैसे कि एजुकेशन की बात होती है, हेल्थ की बात होती है, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होते तो एक हथियार होता है बच्चों जिसको हम लोग PIL बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका. ओके, नाउ अभी गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज है बच्चों लोग. व्हाट इज द अप्रोच दैट द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड टुवर्ड्स द scheduled caste and scheduled tribes. तो उसमें 3 अलग अलग एलिमेंट्स आते हैं चिल्ड्रन. एंड व्हाट आर दोस 3 एलिमेंट्स? 1, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा. अफर्मेटिव एक्शन, क्या अफर मतलब पॉजिटिवली देखना है उनकी तरफ. रिजर्वेशन होता है सीट्स के लिए, रिप्रेजेंटेशन मिलता है बच्चों लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में. एंड वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन. जिसमें एग्जाम्पल कुछ प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि वो जो बॉन्डेड लेबर होता है उसको खत्म किया जाता है, और कुछ प्रमोशनल एलिमेंट्स भी होते हैं बच्चों लोग, जैसे कि उनको घर के लिए जमीन देने का, घर बना के देने का. सो दे हैव मेड काइंड लाइक सम रीजनेबल प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन द लास्ट 60 इयर्स चिल्ड्रन. जैसे कि 2002 में
compulsory and free education for all the children was addicted to the directive principles of the state policy. और ये खास करके दलित लोगों के लिए भी होता है. 1992 के बाद फेजेस में मिड डे मील को हमने इंट्रोड्यूस किया बच्चों लोग. आफ्टरनून्स में बच्चों को मील दिया जाता है. अब ये खाना देने का मेन रीजन क्या होता है बच्चों लोग? ये दलित लोग होते, गरीब होते. अभी बच्चों को स्कूल तक लाने के बाद फिर पढ़ा सकते हो. बच्चे स्कूल में नहीं आते तो उनको थोड़ा खाने का लालच दिया जाता है कि मतलब स्कूल आओ खाना मिलेगा. अभी घर वाले लोग कैसे बोले कि चलो पढ़े ना पढ़े लेकिन कम से कम घर का खाना तो बचेगा, इसीलिए बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है. राइट. ओके. सो चिल्ड्रन एटलीस्ट गेट वन प्रॉपर मील ड्यूरिंग द डे, क्योंकि पेरेंट्स के लिए कभी कभी वो डिफिकल्ट होता है बच्चों लोग. ओके. सो Indian education policies they constitute to favor the urban upper caste English educated section of the population. और उसकी वजह से होता क्या है? Social and physical mobility, but resulting in mass illiteracy for the members of the poor and the lower communities children that we have. ठीक है. और जो हायर स्टडीज के इंस्टीट्यूशंस होते हैं बच्चों लोग, ठीक है, तो ध्यान रखने का कि दे आर इन अ विच आर रन बाय द गवर्नमेंट आर इन अ वेरी बैड सिचुएशन. और फिर ये गवर्नमेंट के स्कीम्स ग्रास रूट लेवल तक पहुंच नहीं पाते बच्चों लोग. ओके. सो ये था बच्चों लोग. अगर एग्जाम में इफ दे आस्क यू एनीथिंग रिलेटेड टू कास्ट विल बी एबल टू आंसर चिल्ड्रन, डोंट वरी अबाउट दैट. अभी मैं आपको बता रहा था बच्चों लोग कि लाइक इंडिया में झगड़ा करने के क्या क्या रीजंस होते हैं. तो आई टोल्ड यू कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा होता है, कास्ट के बीच में झगड़ा होता है. तो कास्ट के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. अभी ये क्या बात करें हम लोग? कम्युनलिज्म. फिर हम लोग क्या बात करेंगे? लिंगिज्म. एंड देन देयर इज रीजनलिज्म. ठीक है. सो चलो बात कर लेते हैं कम्युनिज्म के बारे में. इंडिया में बच्चों लोग बहुत सारे ग्रुप साथ में मिलके रहते हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी हम लोग आपस में कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं बच्चों लोग. लेकिन फिर कभी कभी इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं बच्चों लोग. ओके. और कुछ अलग अलग डिग्रीज पे बेस्ड होते हैं. इसकी वजह से बच्चों लोग वायलेंस होता है. देन देयर इज लॉट ऑफ लॉलेसनेस इन द सोसाइटी. अभी जो मेजर इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स है उसमें से पहला आता है बच्चों लोग कम्युनलिज्म. अभी कम्युनलिज्म को आपको अगर अच्छे से समझना है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि हमारा रिलीजन बाकी के रिलीजन से अच्छा है, या फिर हमारा पॉलिटिकल पार्टी उनके पॉलिटिकल पार्टी से अच्छा है, हमारा सोसाइटी बच्चों लोग उनके सोसाइटी से अच्छा है. दैट मीन्स वी फील दैट आवर रिलीजन इज मोर सुपीरियर टू अदर. बच्चों मुझे अगर मेरा रिलीजन अच्छा लगता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे कोई हक नहीं बनता है कि मैं दूसरे के रिलीजन को कुछ भला बुरा बोल दूं. तो उसी को टॉलरेंस बोलते हैं ना बच्चों लोग. कभी एक आध बार मतलब कोई नमाज पढ़ते रहता है, आपको आवाज का तकलीफ हो सकता है, लेकिन फिर आप जब नवरात्रि वगैरह मनाते हो बच्चों लोग, आप जब गणपति विसर्जन करते हो, या फिर हम लोग जब चर्च में मिडनाइट मास वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, हाँ तो वो लोग भी तो उस टाइम पे बर्दाश्त करते हैं. सो चिल्ड्रन इट्स नॉट यू एंड मी. मतलब धर्म के ऊपर भी एक चीज होती है बच्चों लोग जिसको हम लोग इंसानियत बोलते हैं. तो उसको अगर हम लोग थोड़ा रिस्पेक्ट करना सीख ले तो फिर रिलीजन कभी बीच में आए नहीं, और सब रिलीजन्स बच्चों लोग हम लोग रिस्पेक्ट कर सकते हैं. देखो मुझे अपना रिलीजन अच्छा लगता है लेकिन मैं तुम्हारे रिलीजन का भी रिस्पेक्ट करता हूँ. अच्छा मेरा भगवान कितना ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारा एकदम कैसे वीक है, ये नहीं चलता बच्चों लोग. आफ्टर ऑल भगवान ने इंसान को बनाया. इससे अच्छा हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि लाइक इंसान ने भगवान को बनाया हुआ है. थोड़ा सा रिलीजन को बाजू में रख के ये सब चीजें सुनना. and those are very devoted people. You might feel a bit bad, but I'm just telling you about some rationalism. फाउंडेशन कोर्स में बच्चों हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं. रीजनिंग. अच्छा. A communal group promotes the interests of its own members and in doing so they may be even hostile to the interests of other groups and the communities. मतलब हमारा धर्म अच्छा है तो हम लोग जो करेंगे उससे बाकी लोगों को कितना तकलीफ होता है उसके बारे में हम लोग सोचने वाले, और जितना हो सके हम लोग उनको दूसरे रिलीजन के लोगों का ना बच्चों प्रोवोक करते हैं. कभी कभी कुछ रिलीजन के लोग होते हैं ना जो ऐसा भाषण देंगे ना बच्चों कि लोगों को भड़काने का, फिर बाद में लोगों के बीच में वायलेंस करा देने का. एंड देन देयर इज दैट लॉलेसनेस इन द सोसाइटी चिल्ड्रन. ठीक है. बट what do you feel children कि like communalism is new to India? Not at all children. We have been looking at that for centuries now. और एक तो कॉमन है बच्चों लोग, कभी भी हम लोगों को टाइम पास के लिए कुछ नहीं मिलता है तो हम लोग चालू हो जाते हैं. क्या? हिंदूज और मुस्लिम्स चलो आपस में झगड़ा करते. क्यों झगड़ा करने का है पता नहीं, बचपन से मतलब एक बहुत जमाने से हम लोग झगड़ा करते हैं ना, तो अभी भी करना पड़ेगा, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा ना. अभी 1947 के टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवीजन हुआ था तो उस टाइम पे मुस्लिम्स चिल्ड्रन दे हैव बीन स्टेरियोटाइप्ड.
मतलब आप देखो ना बच्चों, कोई भी मूवी में बॉम्ब ब्लास्ट करते हुए किसको दिखाया जाता है? अ पर्सन विद अ लॉन्ग बियर्ड एंड अ कैप। इसका मतलब क्या होता है कि ब्रांड बना दिया ना उन्होंने कि मतलब एक टेररिस्ट कौन होते हैं? मुस्लिम्स होते हैं। बट इज इट ट्रू चिल्ड्रन? कल जाके मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसे कर सकता है कि लाइक हाँ बॉम्ब ब्लास्ट कराने का, लेकिन फिर हम लोग उनके गेटअप में जाके कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, इट स्टेरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति कुछ गलत काम करता है, हमको लगता है कि हाँ ये सब लोग ऐसे ही होते हैं। दैट इज नॉट प्रॉपर चिल्ड्रन। अच्छा, तो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, फंडामेंटलिस्ट होते हैं। अभी बच्चों ये आधे से ज्यादा झगड़ा करवाने वाले लोग होते हैं कौन है? लेकिन ऑब्वियसली चिल्ड्रन, दे आर द पॉलिटिशियंस। अगर दो जन आपस में प्यार से रहेंगे तो मेरे को क्या फायदा होगा? अभी बच्चों इमेजिन करने के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए, हिंदूज और मुस्लिम आपस में प्यार से रहेंगे तो कुछ फायदा नहीं होता। तो कोई एक नेता आएगा, हिंदू लोगों को भड़काएगा, वहां पे कोई नेता चाहता है मुस्लिमों का, अरे ऐसे कैसे, झगड़ा करो, थोड़ा झगड़ा लगाने का, फिर बाद में जाके सिंपैथी दिखाने का कि मैं तुम लोगों के साथ में हूं, फिर उनको आपको लीडर बनाने का चांस मिलता है। तो सिंस द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान दिस थिंग्स हैव बीन हैपनिंग चिल्ड्रन। और हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में कभी ना कभी कुछ ना कुछ क्लैशेस होते रहते हैं। ओके और लेकिन फिर आपको पता है चलो ये सबका इफेक्ट सबको होता है ना। इट्स नॉट ओनली हिंदूज एंड मुस्लिम चिल्ड्रन, नॉट ओनली द टू कम्युनिटीज बट अदर कम्युनिटीज एज वेल। जैसे कि बाबरी मस्जिद को जब गिराया गया था, एंड इन द गुजरात स्टेट ऑन अकाउंट ऑफ द फायर दैट वाज अकर्ड, शायद आपने नाम सुना रहेगा, साबरमती एक्सप्रेस था बच्चों लोग, उसको गोधरा रेलवे स्टेशन पे जलाया गया था। उसके बाद में गोधरा हत्याकांड हुआ था 2002 में, जहां पे मतलब हजारों लोगों का कत्ल करवाया गया था। कौन करा रहा था, किसने करवाया था, किसका हुआ था, हम लोग ये सब कॉन्फ्लिक्ट या फिर कंट्रोवर्सी में नहीं फंसते। लेकिन फिर हम लोग को पता है बच्चों लोग कि जो भी मरता है ना बच्चों लोग, वो इंसान होता है, फिर वो हिंदू और मुस्लिम बाद में होता है। तो एक इंसान को दूसरे इंसान को मार के खुशी कैसे मिलेगी? इट्स आफ्टर ऑल ह्यूमन ब्लड चिल्ड्रन। अच्छा, अभी जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म होता है दैट इज स्वीपिंग द वेस्ट एशिया हैज टू सम एक्सटेंट इन्फ्लुएंस इंडियन मुस्लिम्स एज वेल, एंड रिएक्शन टू दिस Hindu communal leaders are urging the Hindu community to assert its claim as a sole patriotic group in India। तो कुछ लोगों को लगता है कि मतलब लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि there are some people उनको लगता है कि इंडिया मतलब हिंदू लोगों का ही है। But I suppose for example like there are almost 7 to 8 different religions who stay in India children, and it's like a beautiful garden। Imagine a garden children जहाँ पे आपको सिर्फ व्हाइट कलर के फ्लावर्स दिखते थे। इमेजिन करना बच्चों हर सुबह उठने के बाद में आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज सुनाई देता था। इमेजिन करना हर रोज अगर आपको खाने के लिए एक ही वैरायटी मिलता था। इमेजिन करना बच्चों आपको सेम टाइप के कपड़े पहने हुए सब लोग दिखते थे, तो शायद आपको मजा नहीं आता था ना। तो इमेजिन करना एवरी डे यू गेट अप, यू हैव अ वैरायटी ऑफ पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड दे वेयर दिस डिफरेंट ड्रेसेस, वैरायटी ऑफ फूड दैट इज बीइंग प्रिपेयर्ड, अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं। इमेजिन करना हर साल अगर हम लोग सिर्फ दिवाली मना के चुप बैठ जाते थे। अभी देखो कोई भी फेस्टिवल आता है हम लोग खुश हो जाते हैं, ईद भी आता है तो भी लोग खुश हो जाते हैं, क्रिसमस आ रहा है चलो सब लोग खुश होते हैं। आप उनको क्या छुट्टी से मतलब रहता है? अच्छा, बाद में देखने का कि वो किसका फेस्टिवल है। तो देयर कुड बी सम हिंदू सिख कम्युनलिज्म भी आता है चलो, हिंदू मुस्लिम कम्युनलिज्म है, हिंदू क्रिश्चियन कम्युनलिज्म भी आता है चिल्ड्रन, और भड़काने वाले आधे से ज्यादा पॉलिटिशियंस। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस चिल्ड्रन की लाइक व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस ऑफ कम्युनल वायलेंस। तो मैं आपको हेडलाइनर्स बता रहा हूँ चिल्ड्रन। पहला, कुछ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म हुआ है बच्चों लोग, कुछ भी आते हैं मतलब हर एक रिलीजन में कुछ लोग हैं जो अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, मारा मारी के टाइम पे उनको एक्टिव कराया जाता है। तो ये लोग मतलब कहीं पे झगड़ा हुआ नहीं कि ये लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं। दूसरा, आधे से ज्यादा झगड़ा कराने वाले कौन? पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि उनको ये झगड़े के जरिए ना बच्चों माइलेज मिलता है। देन एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अपने इंडिया में ना बच्चों लोग जो भी कानून बनता है सबके लिए सेम नहीं रखते ना, ए रिलीजन के लिए अलग कानून, ए रिलीजन के लिए ये लोग ऐसा कर सकते हैं, वो लोग वैसा नहीं कर सकते। इनका फेस्टिवल आएगा तो पटाखे नहीं फोड़ने का, उनके टाइम पे फोड़ा तो चलेगा। हाँ, तो वी डोंट हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। और कुछ नेता लोग इन्फ्लेमेटरी भाषण देते हैं बच्चों लोग, भड़काने वाला भाषण कि हमारे रिलीजन के लोग तुम्हारे सब रिलीजन को खत्म कर देंगे अगर पुलिस को 1 घंटे के लिए हटाया जाएगा, ऐसे किसी ने बोला था हैदराबाद के भाषण में। हाँ, तो आई थिंक और कुछ लोग है ना ये भाषण में मतलब इतना बह जाते हैं कि फिर जाके मारामारी करके आने का, और उसमें सिर्फ मरते कौन है? इंसान। देन देयर आर सम लोकल प्रॉब्लम चिल्ड्रन। कभी कभी लोकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी होता है, जैसे कि एकाध
मतलब हिंदू लड़के ने एक आध मुस्लिम लड़की को छेड़ दिया है, फिर एक आध मुस्लिम लड़की ने किसी क्रिश्चियन लड़की को, तो ये दोनों कम्युनिटीज में झगड़ा चालू हो जाता है। ठीक है। अच्छा अभी देखो चलो कि मतलब सपोज कि लाइक मैं अगर एक क्रिश्चियन हूँ, मुझे किसी हिंदू ने फिर किसी मतलब मुस्लिम ने या फिर किसी सिख ने कुछ गाली दिया, राइट। अभी मैं उसको ऐसे भी बोल सकता हूँ बच्चों कि देखो गाली बच्चों ऐसे भी क्या हवा में उड़ने वाले थोड़े वर्ड्स होते, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, उसको थैंक यू बोलने का, उसको बोलने का और 4-5 आता रहेगा तो दे देना, मैं सुन लेता हूँ। अच्छा लेकिन हम लोग कैसे बोलते कि देख तूने मेरे को गाली दिया, मतलब क्या एक हिंदू ने क्रिश्चियन को गाली दिया, अभी इधर ही लोग 10-15 जन को लेके आता हूँ, फिर मैं मारामारी चालू कर देते हैं। हाँ दैट्स इट चिल्ड्रन, देयर इज नथिंग ग्रेट इन दैट। अच्छा एक आध किसी के भगवान के स्टैचू को, किसी क्रॉस को रात को जाके किसी ने काला लगा दिया, या फिर किसी शिवाजी महाराज को किसी ने मतलब फॉर एग्जाम्पल कुछ हार वगैरह पहना दिए, तो अगले दिन सब झगड़ा। लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए ना चलो, अगर मैं देखूंगा कि हाँ मेरे किसी लीडर को किसी ने कुछ चप्पल का हार वगैरह पहना दिया है, मैंने देखा सबसे पहले, मैं सबको फोटो निकाल के भेजू क्या? नहीं। ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि मैंने वो चप्पल का हार वगैरह निकाल दिया, वो स्टैचू साफ वगैरह कर दिया और मैंने किसी को नहीं बोला बच्चों। मतलब जो लोग झगड़ा लगाना चाहते थे ना, उनका प्लान फेल हो गया है। बट वी रिक्वायर लाइक दिस पीपल इन अ सोसाइटी। देन वी हैव गॉट द लोकल प्रॉब्लम्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल यस पेटी इश्यूज, फ्लिम्जी और पेटी इश्यूज सच एज स्लॉटरिंग ऑफ अ काउ, किसी गाय को काटा इसीलिए, या फिर फॉर एग्जांपल के लाइक मतलब कोई वो वंदे मातरम बोलने का क्या नहीं बोलने का, हाँ सिर्फ हिंदूज ही बोलेंगे या फिर मुस्लिम्स को भी बोलना पड़ेगा, या फिर थिएटर में वंदे मातरम जब चल रहा था तो उस टाइम, या फिर जनगण जब बजाया जा रहा था तो उस टाइम पे कोई खड़ा नहीं होता है, तो वहां पे मारामारी चालू कि फिर वो बाहर तक आ जाता है, या फिर रिलीजियस प्रोसेशन के टाइम पे ये सब चीजें होती है। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है चिल्ड्रन, इट्स अ फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अगर पुलिस अपना काम ठीक से करेगी ना, मतलब इतना डर होना चाहिए, जैसे कि अभी एक रूल होता है ना कि किसी आंदोलन में मोर्चे में अगर कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय दिखता है ना बच्चों, तो गवर्नमेंट की नजर में आया तो उसका जॉब चला जाता है। हाँ तो लॉ एंड ऑर्डर हैज टू बी स्ट्रिक्ट। फिर यात्राज बाय पॉलिटिकल लीडर्स, आपने एक मूवी देखा रहेगा रईस, वहां पे पता है बच्चों लोग कोई नेता को अपना यात्रा निकालने का रहता है और वो भी उनके एरिया में से जाने का रहता है। तो चलो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं बच्चों, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, रथ यात्रा वगैरह निकलने का अपना पावर दिखाने के लिए, फिर उसके टाइम पे भी फिर बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं वहां पे। वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, समथिंग लाइक डिसअपॉइंटमेंट ऑफ दैट हिंदू कम्युनिटी। इंडिया में चलो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वाज सेइंग इन इंडिया बिलोंग टू विच रिलीजन? हिंदू, ऑलमोस्ट 84%। ओके, तो उनको लगता है कि कुछ लोग हैं जो वोट बैंक के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी जो भी करते हैं ना वो सब बर्दाश्त कर लेते हैं, मतलब उनको जो चाहिए वो करने के लिए दिया जाता है वोट बैंक के लिए। हाँ तो उसकी वजह से हिंदू लोग थोड़े दुखी रहते हैं बच्चे लोग। रिलीजियस कन्वर्जन, ये और एक रीजन, और इसमें सबसे फेमस नाम किसका आता है चिल्ड्रन? इधर द क्रिश्चियंस और द मुस्लिम्स। धर्मांतर करके बोला था उसको। कभी कभी कुछ लोगों को मदद करते हैं, अभी जैसे कि इफ आई बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, मेरे रिलीजन ने कभी मेरे लिए कुछ काम नहीं किया था, लेकिन कोई क्रिश्चियन फादर्स वगैरह थे, उन्होंने मेरे को हेल्प किया, मेरे को जॉब दिया, मेरे बच्चों को उनके स्कूल में पढ़ाया। फिर मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे रिलीजन ने कभी नहीं किया है, क्रिश्चियन लोग मेरे लिए इतना करे, सो व्हाई डोंट आई बिकम अ क्रिश्चियन। और फिर लोग कभी कभी अपना रिलीजन बदलते हैं। कभी कभी उनको लालच भी दिखाया जाता है, कुछ लोग गलत भी करते हैं। लेकिन फिर इंडिया में आता है चलो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बहुत सारे, मतलब आजकल एक नया आता है ना लव जिहाद बोलते हैं उसको, मतलब जानबूझ के दूसरे रिलीजन की लड़कियों को प्यार में फंसाने का और फिर उनसे शादी करते, फिर उनको अपने रिलीजन में कन्वर्ट करा के लेते हैं। और आजकल इसके लिए मैंने सुना कि बच्चों रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, मतलब आप एक आध ब्राह्मण की लड़की को ऐसे प्यार में फंसा के शादी करोगे तो इतना लाख मिलता है, एक आध पंजाबी लड़की से शादी करोगे तो इतना मिलता है। ठीक है, आप लोग ट्राई मत करना। लेकिन हाँ, अगर आप लालच दिखा के कभी किसी का धर्मांतर करते तो बच्चों वो ऑब्वियसली गलत होता है। तो दे हैव गॉट कॉन्सेप्ट, शायद आपने सुना रहेगा आजकल, घर वापसी बोलते हैं उसको, मतलब किसी ने जबरदस्ती किसी को मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट कराया रहेगा तो फिर उनको वापस से शुद्धिकरण करके उनको वापस से हिंदू रिलीजन में लाया जाता है, घर वापसी बोलते हैं उसको, राइट। अच्छा, सो आई थिंक 11th पॉइंट चिल्ड्रन इज टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ फॉरेन फोर्स। हमारे देश में चलो आधे से ज्यादा झगड़ा करवाने में फॉरेन कंट्रीज भी इन्वॉल्व होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टिगेटिंग कम्युनल वायलेंस इन इंडिया। और फिर जानबूझ के कराया जाता है, वहां से भी पैसा आता है कभी कभी, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे मतलब शांति रहे, क्योंकि जितना झगड़ा होगा उतना हम लोग पीछे ही रहेंगे ना बच्चे लोग। जैसे कि अभी कहीं पे एक आध बहुत बड़ा
एनर्जी का प्लांट जैसे कि एटॉमिक पावर स्टेशन, ओके, जैतापुर वीज प्रकल्प, वहां पे बच्चों लोग मतलब जापान से वगैरह पैसा आएगा कि इंडिया में ये प्रोजेक्ट पास नहीं होना चाहिए, तो लोगों को पैसा देके भड़का के मारामारी करवाने का, फिर वो प्रोजेक्ट को पूरा कैंसिल करते हैं, क्योंकि जापान कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया न्यूक्लियर पावर में इतना आगे बढ़े करके। तो आई थिंक देयर इज फॉरेन फोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, हिंदू मिलिटेंसी, मतलब हिंदू मिलिटेंसी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फैनिंग कम्युनल वायलेंस, मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कभी कभी मतलब देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रन, अभी नाम तो नहीं लेते हम लोग यहाँ पे, तो लोग कभी कभी ये सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, नो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ये सब का इफेक्ट, मैं आपको पॉइंटर्स बता रहा हूँ। हमारे सोसाइटी में चलो ऑर्डर रहेगा क्या, डिसऑर्डर, एंटायरली डिसऑर्डर चिल्ड्रन, और फिर कानून व्यवस्था खत्म हो जाती है, लूटिंग, लोग चोरी वगैरह करते हैं, बच्चों लोग चांस मारने के लिए लोग खड़े रहते हैं। ओके, अच्छा, देन मॉलेस्टेशन, बहुत सारे सिचुएशंस में बच्चों लोग जब दंगे वगैरह होते तो औरत लोगों को वहां पे मॉलेस्ट किया जाता है, छेड़छाड़ होती है। अच्छा, छोटे बच्चों का, औरत लोगों का सबसे बड़ा लॉस होता है। देन देयर इज डिसरप्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कि ऑफिस चला नहीं सकते, फैक्ट्रीज टूट जाते हैं बच्चों लोग वहां पे। अच्छा, और सबसे बात की उस स्टेट का ना एक नेगेटिव इमेज तैयार होता है। अभी आप देखो दिल्ली में बच्चों लोग फार्मर लोग क्या एजिटेट कर रहे हैं ना, तो नाम खराब होता है ना बच्चों लोग दिल्ली का, फिर फॉरेन लोग वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियंस, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ऐसे स्टेट में से किया हुआ इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल देते चिल्ड्रन, दे टेक अवे देयर इन्वेस्टमेंट। वन मोर थिंग चिल्ड्रन दैट यू ऑब्जर्व हियर इज दैट कि जब भी ऐसे कम्युनल वायलेंस को हम लोग नोटिस करते हैं तो यहाँ पे जो अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं ना, एंटी सोशल एलिमेंट्स, वो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और फिर ध्यान रखने का चलो, किसी एक सोसाइटी के लोगों को ना हमेशा विक्टिम बनाया जाता है, जैसे कि विक्टिमाइजेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ सर्टेन कम्युनिटी, जैसे कि मुस्लिम्स आर बीइंग विक्टिमाइज्ड बाय सम ऑर्गेनाइजेशंस इन यूएसए एंड यूरोप एंड नेशंस ऑन अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बिल्डिंग इन यूएसए। तो लादेन वगैरह, फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया गया था। अच्छा, वहां पे फॉरेन कंट्रीज में जब आपने सुना रहेगा कभी शाहरुख खान को वहां पे सिक्योरिटी पे मतलब डिटेन किया जाता है, पासपोर्ट, व्हाई, बिकॉज मुस्लिम। तो उन्होंने एक मूवी भी निकाला था ना, माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट करके, मतलब एवरी खान इज नॉट अ टेररिस्ट। ओके, अब ये सबको सॉल्व करने का तरीका, तो पहला लॉ एंड ऑर्डर, मतलब बच्चों पुलिस को ऐसे लोग जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं ना, उनको उठाने का बच्चों उनको इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलना चाहिए कि अगली बार है ना कोई भी राइट्स करने से पहले 4 बार सोचे। दैट्स लाइक टाइमली इंटरव्यू। अपने यहाँ पे बच्चों लोग कैसे हैं, पुलिस लोग है ना किसी का साइड लेते हैं, वो गलत, और फिर वक्त पे पहुंचते भी नहीं है। हाँ, तो दिस सिचुएशंस दे बिकम वर्स्ट। अच्छा, दूसरी बात बच्चों लोग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कम्युनल एलिमेंट्स, मतलब कौन लोग हैं जो ऐसे दंगे फसाद करवाने के लिए उकसाते हैं लोगों को, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, और फिर गवर्नमेंट शुड टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे चीजों को सपोर्ट करने वाले लोगों के खिलाफ तो स्ट्रिक्ट एक्शन हो। और मुझे लगता है सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है बच्चों लोग एजुकेशन। अभी मैं पढ़ा लिखा हूँ बच्चों लोग, तो मुझे अगर मेरे रिलीजन को लेके अगर कोई बोलता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसको बोलने का कि वो थैंक यू, मैं क्या हूं मेरे को पता है, और तुम क्या हो तुमको पता है, बस काफी है। हाँ, टीचर्स, जैसे कि अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ बच्चों लोग कि हम लोग कभी एक रिलीजन का साइड नहीं ले सकते। मैंने बोला ना कि लाइक हम लोग हर एक के रिलीजन को थोड़ा रिस्पेक्ट करेंगे, तो ये चीजें हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में सिखा सकते हैं ना। पेरेंट्स है बच्चों, हमारे नेबर्स है, कम्युनिटी लीडर्स होते हैं, जैसे कि संडे के दिन हम लोग चर्च में जाते हैं, वहां पे फादर हमको बोलेगा कि मतलब फॉर एग्जांपल रिस्पेक्ट एंड हेल्प पीपल, दे माइट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन, दे शुड नॉट ट्राई टू टेल कि लाइक हाउ आवर रिलीजन इज ग्रेट। हाँ, देन आई थिंक द वर्ल्ड वुड बी, कंट्री वुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। और फिर और एक रोल आता है बच्चों लोग, दैट इज द रोल ऑफ मीडिया। मीडिया बच्चों लोग आधे से ज्यादा टाइम पे एक अच्छा बोलते ना, फॉर एग्जांपल एक अच्छा सोसाइटी क्रिएट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो लोग। जो सेल्फिश लीडर्स वगैरह होते हैं उसको दुनिया के सामने ला सकते हैं हम लोग टेलीविजन के जरिए। फिर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं, चलो गवर्नमेंट होता है, एनजीओज होते हैं, कम्युनल हार्मनी को प्रोमोट किया जाता है। It will be a constant reminder to the people not to indulge in communal activities, और we are moving towards communal harmony। फिर बच्चों लोग वहां पे दिया रोल ऑफ रिलीजियस लीडर्स। कभी कभी रिलीजन के लीडर्स भड़काने का काम करते हैं ना, तो उनको तो मैं बोलता हूँ कि लाइक शांति फैलाने में हेल्प करना चाहिए। दे शुड प्रीच
द एडवांटेजेस ऑफ कम्युनल हार्मनी। सब लोग अगर शांति से, प्यार से, भाईचारे से रहेंगे तो चलो कितना अच्छा रहेगा, सोचो आप। फिर डी रिकॉग्निशन ऑफ कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी में चलो ऐसे दंगे फसाद करवाने में उनका हाथ दिखता है ना, तो फिर ऐसे पार्टीज का रिकॉग्निशन कैंसिल होना चाहिए, अगली बार उनको इलेक्शन लड़ने के लिए हम लोग परमिशन नहीं देंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, पनिशमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट का व्यक्ति ऐसे दंगे फसाद में मिलता है, अपना जॉब छोड़ के मालूम पड़ा वहां पे आंदोलन करने के लिए गया था, तो उसको बोलने का आंदोलन नहीं करता रहे, कल से काम पे दिखना मत करके। सो वी कैन डिसमिस हिम फ्रॉम सर्विस, या फिर उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन वगैरह कैंसिल किया जाता है। चलो अच्छा, देन वी कैन आल्सो सेट अप व्हाट आर कॉल्ड एज दी पीस कमिटीज। अलग अलग लीडर्स को लेके, लोगों को इन्वॉल्व करके, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, पुलिस को साथ में लेके चिल्ड्रन, वी कैन गो फॉर सम peace committees that we have, and could have a very peaceful environment in that particular area. Or leaders children, they go a long way in maintaining the peace and harmony in particular area. जैसे कि चलो if you talk about a area ना, Bhiwandi, that is in Mumbai, peace committees have been set up to diffuse communal riots. So that's another contribution we have. And we have got special courts. किसकी जरूरत रहेगी बच्चों लोग? स्पेशल कोर्ट्स की। तो कम्युनल राइट्स होते हैं तो उसको डील करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स की जरूरत होती है, ताकि सम स्पीडी एक्शन कैन बी टेकन, और जो लोग वहां पे कल्प्रिट्स होते हैं बच्चों लोग, उनको सजा मिले, और जो विक्टिम्स होते हैं उनको न्याय मिले, इसके लिए, राइट। अच्छा, अभी ये जो हमने कम्युनलिज्म पढ़ा बच्चों लोग, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कास्टिज्म के बारे में। तो आप यहाँ पे वापस से पूरा एक डिस्कशन देखोगे चिल्ड्रन, विच इज एंटायरली बेस्ड ऑन कास्टिज्म। अभी कास्टिज्म के बारे में वापस से हम लोग थोड़ा सा, आई विल बी टेकिंग वन मोर लेक्चर चिल्ड्रन, जहाँ पे हम लोग कास्टिज्म को छोटा सा शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, और फिर आगे के हमारे जो दो प्रॉब्लम्स है ना, कौन से? लिंगिज्म और रीजनलिज्म। तो आई विल बी कंप्लीटिंग दिस टॉपिक इन द वन मोर लेक्चर चिल्ड्रन, विच विल बी with you almost like within 1 or 2 days. I will get back to this topic and will complete it. फिर अपना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर बाकी रहेगा। So आज हमने बच्चों लोग कास्टिज्म के बारे में पढ़ा स्टार्टिंग में, और फिर कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ा है। Next lecture में children we will be focusing more on lingism and regionalism. So this topic will get over. Okay, that's all for today. Thank you very much. Take care everyone. See you in the next lecture.